نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا. در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیل سے اٹھا لینا، بیل سے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا. پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن کی بیٹیاں جلا دینا، پہلے اپنے آنگن کی بیٹیاں جلا دینا. موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی،
موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنا چاہو کشتیاں چلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا۔ محترم صدر مجلس، ناظرین اجلاس، اسٹیج پر موجود دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں۔ کافی باتیں آپ نے سنی۔ خیر الکلام ما قل ودل، بات تھوڑی ہو لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے زیادہ اہم ہو تو وہ بہترین بات ہے۔ کوشش یہ رہے گی کہ بہت لمبی تقریر آپ کے سامنے نہ کی جائے، ایک بہت ہی اہم عنوان پر کچھ اہم باتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دنیا میں ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے۔ محبت ایک فطری چیز ہے۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، بادشاہ کو اپنی رعایا سے محبت ہے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ سے تو ہر ایمان والے کو محبت ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ بھئی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ پروف کیسے ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفائڈ کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویریفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تب تو ہمارا محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریباً 16 ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان 16 کام کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اگر ان 16 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی صحیح معنوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انشاءاللہ ہمیں حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ 16 چیزیں بیان کروں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے یا نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اس کی کوشش ہم کیوں کریں؟ کیا فائدہ ہے ہمارا؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو صحیح بخاری میں لائے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں اور وہ حدیث آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کی یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا، یہ حدیث میری اس موضوع کی بنیاد ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب بتاؤ کس کی مجال ہے کہ جو اللہ سے جنگ کرے گا؟
حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اولیاء کرام کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے. من عادانی ولیًا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ولی ہے کون؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ما من شيء يتقرب إلي عبدي احب إلي مما افترضته عليه. میرا بندہ سب سے زیادہ کسی چیز کے ذریعے اگر میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائض ہے، فرض عبادتیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے. میرا بندہ جب فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، جب وہ 5 ٹائم کی فرض نمازیں پڑھتا ہے، جب وہ رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے، جب وہ فرض زکوٰۃ دیتا ہے، جب اس کے اوپر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ حج ادا کرتا ہے، جب وہ اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، بندہ میرے قریب آنے لگتا ہے، بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، بندہ میرا ولی بن جاتا ہے. میرا ولی بننے کے لیے پہلی شرط یہ، پہلی سیڑھی یہ کہ بندہ میرے فرائض کا اہتمام کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کی حدیث نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی فرائض کی پابندی نہ کرے، جو نماز کی پابندی نہ کرے، جو رمضان کے روزوں کی پابندی نہ کرے، جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہ انجام دے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. ولی کون؟ جو فرائض کو انجام دے. اچھا، اب حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا دیکھیے. پوری حدیث بڑے غور سے سننے والی ہے. اولیاء کرام کا مقام کیا ہے اور اولیاء کرام کہتے کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بخاری کی یہ حدیث کافی ہے. وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ فرائض کو انجام دینے کے بعد جب نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے، مسجد میں گیا، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کے بعد وہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے روزے تو رکھتا ہی ہے، ساتھ میں وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے. محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے. ہر مہینے میں جو چاند کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 ایام بیس کا روزہ رکھتا ہے. سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے کیونکہ سوموار کے دن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہے. جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے کیونکہ جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میرا بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی انجام دینے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل صدقہ دینے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے، میرا بندہ اور زیادہ میرا مقرب بن جاتا ہے، میرا قریبی بن جاتا ہے. اور جب میرا بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے، حتی احبہ، میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. یہی میرا ٹاپک ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں، فرائض کی پابندی کرو، نوافل کی پابندی کرو، اللہ کے دھیرے دھیرے قریب آؤ گے اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو نتیجہ کیا ملے گا؟ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پیر بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے کانوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے ہاتھوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے ہاتھ کسی غلط چیز کو پکڑتے نہیں، اس کے پیر کسی غلط جگہ کی طرف چل کر نہیں جاتے، اس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کے کانوں میں حرام چیزوں کو سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کا کہ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو ہمارے ناک، کان، آنکھ سب کی حفاظت کرے گا، اور کیا کرے گا؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میرا بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ میرا بندہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرا بندہ جب بھی میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہو جاتا ہے آدمی کا جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندہ اگر کسی چیز سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اس کے گھر کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا، شیطان کا اثر ہو گیا، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے گھر کی حفاظت فرما دے، اللہ ان شیاطین کو بھگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس چیز سے بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اللہ اس کو پناہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے محبت کا بدلہ۔ تو بتائیے کیا ہم میں سے کوئی ایسا انسان بھی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 چیزیں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، چاہے 16 منٹ میں ہی بات پوری ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز جس سے اللہ ہم سے محبت کرے گا، قرآن کا دوسرا پارہ کھولیے، سورۃ البقرہ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پیچھے اسٹیج کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے، برابر میں سن رہا ہوں، دیکھو ذرا سا کوئی اس کو مناسب اسٹیج کے پیچھے بات کر رہا ہے، مقرر کو دقت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بال بچوں کو بھوکا رکھو، اپنا گھر پریوار چلانا، اپنے بیوی بچے کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا بھی عبادت ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کرو، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ اپنے بیوی بچوں کا اور اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اور اس کے بعد تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْسِنُوا، اور میرے بندو احسان کیا کرو، احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ واٹ از احسان؟ احسان کیا ہے؟ اردو میں ہم لوگ احسان کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا عتیق الرحمان صاحب کو کوئی ضرورت تھی، میں نے ان کی مدد کر، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر احسان کیا، اسی کا مطلب تو احسان ہے۔ لیکن شریعت میں احسان بڑا وسیع لفظ ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے فائدے مند بن جاؤ، یوزفل بن جاؤ۔ آج مسلمان کے اندر اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ مسلمان پبلک ویلفیئر کے کاموں میں بہت پیچھے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ذرا یاد کیجیے سیرت النبی کا وہ واقعہ، اللہ کے نبی کا دشمن ثمامہ ابن اسال پکڑ کے لایا گیا،
मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया गया। बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी आते हैं, माँ इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल चाल है? सुमामा कहता इन तक्तुल ज़ादमिन, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं आपका दुश्मन हूँ, आपके खून का प्यासा हूँ, आपने गिरफ्तार कर लिया है, आपकी कस्टडी में हूँ, आप मेरा मर्डर भी कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, मार देंगे तो मैं इसी के लायक हूँ, छोड़ देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हदीस के अल्फाज है, नबी अकरम कोई जवाब नहीं देते, खामोश हो जाते हैं, चले जाते हैं। सुमामा को तीनों टाइम का खाना पीना भी मिल रहा है, आराम से मस्जिद के अंदर रहता है, खंबे से बंधा हुआ है। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल फिर आते हैं, वही सवाल करते हैं, सुमामा क्या हाल है? सुमामा वही जवाब देते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो आप अपने दुश्मन को कत्ल करेंगे, छोड़ देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। चौथे दिन जब अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं, अपने सहाबा से कहते हैं अतलिकू सुमामा, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को छोड़ दिया जाए, सुमामा को खोल के आजाद कर दिया जाए। सुमामा की रस्सियों को खोल दिया जाता है, सुमामा को आजाद कर दिया जाता है। सुमामा इतने औसाद मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकलते हैं, पैर तो आगे की तरफ जा रहा है, कलेजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ खींचा चला जा रहा है, पैर तो आगे की तरफ जा रहा है, दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है कि दुनिया ने ऐसा भी कोई दुश्मन नहीं देखा कि 3 दिन तक मैं उनकी हिरासत में रहा, 3 दिन तक मैं उनके कंट्रोल में रहा, लेकिन न मुझे कोई तकलीफ दी गई, न टॉर्चर किया गया, न सताया गया, न मारा गया। सुमामा बगल के मस्जिद नबी के बाजू में एक बाग में दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद एक कुएं से पानी निकाल कर गुस्ल करते हैं, और गुस्ल करने के बाद अल्लाह के नबी के पास वापस आते हैं और कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है मेरे नबी की सीरत का प्यारा अंदाज से दुश्मन के साथ भी आपने भलाई का सुलूक किया, ये इस्लाम सिखाता है। जरा बुखारी के वो हदीस, वो अल्फाज देखिए, मामिन मुस्लिमिन यदरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन, मुसलमान अगर कहीं पर कोई पौधा लगा दे, जो मुसलमान कहीं पर कोई पौधा लगा दे या पेड़ लगा दे और उस पेड़ से वो खुद फायदा न उठाए, उसका मकसद ये हो कि ये पब्लिक के लिए हो जाए, इससे लोग फायदा उठाएं, ये पेड़ आगे चलकर लोगों को फायदा पहुंचाए, परिंदों को सुकून मिले, जानवरों को सुकून मिले, इंसानों को सुकून मिले। मामिन मुस्लिमिन यदरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फयाकुलु मिनहु तयरुन औ इंसानुन, उससे इंसान फायदा उठाए, उससे परिंदे फायदा उठाए। हदीस के अल्फाज है, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला कान लहू बिही सदका, उस पेड़ के लगाने वाले को ता कयामत सदका का सवाब मिलता रहेगा, उस पेड़ के एवज उसके नामे आमाल में सदका का सवाब लिखा जाता रहेगा। इस्लाम सबके साथ भलाई की तालीम देता है। इस्लाम तो दुश्मन तो छोड़िए, जानवर को ज़बह करने के टाइम भी भलाई की तालीम देता है। जरा मुस्लिम शरीफ की वो हदीस अपने सामने रखिए, हजरत शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज में भलाई का हुक्म दिया है। फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, अगर तुम अपने जानवर को कत्ल करते हो, जानवर को ज़बह करते हो तो अच्छी तरीके से ज़बह करो, अच्छी तरीके से जानवर को ज़बह करो। और अच्छी तरीके से जानवर को ज़बह करने का मतलब क्या है? फलयुहिद अहदुकुम शुफ़रतहु, जानवर को ज़बह करने के पहले छुरी को तेज कर लो, ताकि जब जानवर की रगों के ऊपर छुरी को चलाओ तो जानवर तड़पे ना, जानवर को तकलीफ ना हो, जानवर की एक बार में उसकी जान निकल जाए। ये ज़बह करने के टाइम भी जानवर के साथ एहसान का हुक्म दिया जा रहा है, ये इस्लाम की तालीम है। और एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ, अल्लाह अकबर, जरा एक हदीस देखिए, बुखारी की हदीस,
المسلم اخुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है. ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता. वला युस्लिमुहु, मुसलमान मुसलमान को किसी मुसीबत में बेयारो मददगार नहीं छोड़ता. वमन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही, और जो अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है. वमन फर्रजा अन अखीही कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, और जो अपने किसी भाई की कोई दुनियावी मुसीबत को दूर कर देता है रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन की कोई मुसीबत उससे दूर कर देता है. वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, और जो किसी मुसलमान के किसी ऐब पर पर्दा डाल देता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऊपर पर्दा डाल देता है. अल्लाहु अकबर. ये है एहसान. अच्छा, नमाज हम लोग पढ़ते हैं, नमाज में भी एहसान है. नमाज में भी एहसान है. कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत जिब्रील ने, एहसान किसको बोलते हैं? आपने फरमाया अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा. एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो. फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो कम से कम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है. और हम लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने खड़े हुए मोबाइल निकाल के रख दिया, घड़ी उतार के रख दिया. अब रुकू में जा रहे तो सामने घड़ी रखी हुई है, 4:30 बज रहे हैं, सामने मोबाइल रखा हुआ है. कैसी हमारी नमाज है? क्या हमारी नमाजों में ये तसव्वुर है कि रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है? हरगिज़ ये तसव्वुर नहीं है. हम लोग दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं. ये जुमला आपको बुरा लग रहा होगा, चोर है. चलिए हदीस पाक की रोशनी में इस जुमले का मतलब बताता हूं. मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अशद्दन नासी इन्ना अस्वअन नासी सरक़तन अल्लज़ी यस्रिक़ु सलातहु. ऐ मेरे सहाबा, सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है. सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, नमाज में चोरी का क्या मतलब? आपने फरमाया अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, जो रुकू और सजदा बराबर नहीं करता. रुकू और सजदा बराबर नहीं करता, न रुकू में इत्मीनान, न सजदे में इत्मीनान, न हालत नमाज में कोई सुकून और इत्मीनान. नमाज है कि गोया एक कसरत है, नमाज है कि गोया एक वर्जिश है, नमाज है कि गोया एक फॉर्मेलिटी है. मेरे प्यारे भाइयों, इबादत में एहसान ये है कि इबादत ऐसी की जाए जैसे अल्लाह हमें देख रहा है. तो ये पहली चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है. नंबर 2 और नंबर 3, 2 और 3 नंबर की चीज एक आयत के अंदर जमा कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने. सूरह बकरा की आयत दूसरे पारे, गौर कीजिए. यस्अलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahहिरीन. ये सूरह बकरा की आयत है, दूसरे पारे. तर्जुमा क्या है? ऐ नबी, लोग आपसे हालत हैज के बारे में सवाल करते हैं. औरतों के ऊपर जो नेचुरल फितरी तौर पर जो अय्याम होते हैं उनके बारे में लोग आपसे सवाल करते हैं. ऐ नबी, आप जवाब दे दीजिए कि वो एक गंदगी है. औरत की वो हालत है, गंदगी की हालत है. फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़, उस हालत में औरतों से दूर रहो. दूर रहने का ये मतलब नहीं कि उसके साथ खाया न जाए, पिया न जाए, लेटा न जाए, बैठा न जाए. दूर रहने का मतलब ये है कि उससे सोहबत न की जाए. तो उस हालत में औरत के से दूर रहो. वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और जब तक वो पाक न हो जाए उनके करीब मत जाओ. जो मर्दो जन के बीच में ताल्लुक कायम होता है, मियां बीवी के बीच में, वो ताल्लुक उस हाल में कायम करना हराम है. वो ताल्लुक कायम मत करो जब तक वो पाक न हो जाए. फ़इज़ा ततहहरना, जब वो पाक हो जाए, फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फितरी तरीका बनाया है मियां बीवी के मिलने का, उस तरीके से उनसे मुलाकात करो. ये पूरी आयत है. आयत करीमा का आखिरी टुकड़ा जो मेरा महल इस्तिदलाल है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को, बहुत ज्यादा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकी हासिल करने वालों से मोहब्बत करता है. तो दूसरी चीज तौबा,
तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। अच्छा एक बात बताओ, तौबा आदमी कब करेगा? तौबा का मतलब पता है? तौबा का मतलब होता है वापस आना। मिसाल के तौर पे आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं, अब कहीं आपको यू टर्न लेना है, वापस उसी रास्ते पर वापस आना है, यू टर्न लेना है, इसको कहा जाता है तौबा। तो तौबा कौन करेगा? जो गुनहगार होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी अगर आप गुनहगार हैं तो आप भी अल्लाह की मोहब्बत के लायक बन सकते हैं। आप गुनहगार हैं तो ये सोचकर मायूस मत हो जाइए कि मैं तो गुनहगार हूं, अल्लाह मुझसे कहां मोहब्बत करेगा। सच्ची तौबा करो, अल्लाह मोहब्बत करेगा। तौबा करो। और हमारे उलमा बैठे हैं, तौबा का मतलब क्या है? या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, होगी तौबा? तौबा का मतलब क्या है? तौबा में जब तक 3 चीजें न पाई जाएं तौबा कंप्लीट नहीं होती। नंबर 1, आप जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं फौरन वो गुनाह छोड़ दीजिए। शराबी तौबा भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, इस तौबा का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। हराम कमाई भी खा रहा है और मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहा है, या अल्लाह हलाल कमाई की तौफीक अता फरमा। एक लतीफा याद आया। एक आदमी से किसी मौलवी साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, चलो नमाज का टाइम हो गया, चलो नमाज पढ़ो। तो वो आदमी बोला कि अरे मौलवी साहब दुआ कीजिए, दुआ कीजिए मैं भी नमाजी बन जाऊं। मस्जिद से मौलवी साहब नमाज पढ़ के निकले तो देखा वो आदमी अपनी दुकान की तरफ जा रहा है। बोला कहां जा रहे हो? बोला दुकान की तरफ जा रहा हूं। बोले क्यों दुकान की तरफ क्यों जा रहा हूं? बोले दुकान नहीं खोलूंगा तो रोजी रोटी कैसे मिलेगी? बोले दुकान बंद कर दो, घर जाओ, मैं दुआ कर दूंगा तुमको रोजी मिल जाएगी। इंसान नमाज के मामले में, दीन के मामले में कहता है दुआ कीजिए, दुनिया के मामले में कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, दीन के मामले में सोचता है कि बैठे बिठाए मिल जाए। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर आप अपने किसी गुनाह से तौबा करना चाहते हैं तो आपको वो गुनाह छोड़ना पड़ेगा। ये तौबा की पहली कंडीशन है, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि आप उस गुनाह पर शर्मिंदा हो कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। और तीसरी कंडीशन कि आइंदा वो गुनाह नहीं करूंगा, इन फ्यूचर भविष्य में वो गुनाह मैं कभी नहीं करूंगा। अल्लाह मैं पक्का वादा करता हूं, मैं इरादा करता हूं, मैं हौसला अज़्म करता हूं। ये है तौबा की 3 शराइत। जब तक ये तीनों शराइत पूरी ना हो तौबा कंप्लीट नहीं होती। तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा, बहुत ज्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है। और तीसरी चीज क्या है? पाकी हासिल करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अच्छा, हमारा इस्लाम पाकी वाला मजहब है। हमें नमाज पढ़ना है तो पाक होना है, नापाक है तो गुस्ल करना है, वजू नहीं है तो वजू करना है, पानी नहीं है तो तयम्मुम करना है। हम जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना है, जिस कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़ा पाक होना है। इस्लाम पाकी का मजहब है। इस्लाम में नापाक आदमी की कोई जगह नहीं है। आइए हदीस पाक देखते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को किताब तहारा में लाए हैं और हदीस के रावी हजरत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है। गौर करो तो इस्लाम में बगैर पाकी के कोई चीज है ही नहीं है। आप ज़कात देने के लिए माल निकालते, वो माल भी पाक होना चाहिए, हलाल कमाई का होना चाहिए। आप हज करने के लिए जा रहे, वो भी हलाल कमाई से होना चाहिए। आप रोजा रख रहे हैं, रोजे में भी आपकी नीयत पाक होनी चाहिए। अगर आपका मकसद डाइटिंग करना है, आपका मकसद सिर्फ 14 घंटे भूखा रहना है, तो आप भूखे तो रहेंगे, आपको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। इस्लाम में हर चीज में पाकी है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि पाकी आधा ईमान है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और अगर जुबान से आदमी एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे तो कयामत के दिन नेकियों का तराजू भर जाएगा। अल्लाह अकबर। कितने बदनसीब हैं हम लोग, कितने बदनसीब हम लोग कि अल्लाह तबारक व तआला तो लुटा रहा है और हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान आज अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए भी झिझकता है। कोई पूछता है क्या हाल चाल है, कहता सब ठीक ठाक है। अरे एक बार जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे अल्लाह के बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से कयामत के दिन तराजू भर जाएगा।
वसुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि मा बैन अस्समावाति वल अर्द। और अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ सुभान अल्लाह भी पढ़ दे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे, तो इसका इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी नेकी है कि जमीन व आसमान इससे भर सकते हैं। वस्सलातु नूरुन, और अल्लाह के नबी फरमा रहे कि नमाज एक रोशनी है, नमाज एक रोशनी है। एक आदमी जब नमाज की पाबंदी करता है तो ऑटोमेटिक वो गंदी चीजों से बचने लगता है। एक नौजवान लड़का जो समाज के गलत कामों में मुलव्विस है, शराब पी रहा है, लड़कियों से बातें कर रहा है, 3-5 गलत सलत काम कर रहा है, जब वो नमाज की पाबंदी करता है सारे गंदे काम ऑटोमेटिक उसे छूटने लगते हैं। नमाज एक रोशनी है, नमाज हमें रास्ता दिखाती है कि नहीं तुम नमाज ही होगी ये काम कर रहे हो। नमाज हमें लाइट देती है, रोशनी देती है। वस्सदक़तु बुरहानुन, और सदका एक दलील है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, कहाँ पैसा खर्चा किया? हमारा सदका दलील बन जाएगा। या अल्लाह भदोही के मदरसे में मैंने चंदा दिया था, या अल्लाह मेरे मोहल्ले का गरीब बच्चा था मैंने उसकी मदद की थी, या अल्लाह मेरे मोहल्ले की बेवा थी मैंने उसके घर राशन पहुंचाया था, या अल्लाह जाड़े का दिन तो एक गरीब आदमी ठिठुर रहा था मैंने कंबल दिया था। ये जो हम सदका और खैरात करेंगे ये दलील बन जाएगा हमारे नामे अमल में। वो सब्र ज़ियाउ, और सब्र भी एक रोशनी है। मैं सब्र का मतलब आगे बताऊंगा, सब्र किसको बोलते हैं। वल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, और कुरान हमारे हक में भी दलील बन सकता है कयामत के दिन। कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तो कयामत के दिन कुरान कहेगा या अल्लाह इसको जहन्नम में न डालना, या अल्लाह इसने मेरी तिलावत की थी, या अल्लाह इसने मुझे समझा था, या अल्लाह इसने मुझे पढ़ा था। और यही कुरान हमारे खिलाफ भी हो सकता है। कुरान कहेगा या अल्लाह इसने हमको चूमा तो था, इसने हमको चाहता तो था, अरे अल्लाह इसने जुस्तान में लपेट के रखा तो था, या अल्लाह कभी पढ़ता नहीं था, कभी तिलावत नहीं करता था, कभी गौर नहीं करता था, कभी समझता नहीं था। ये कुरान हमारे हक में भी दलील बन सकता है और हमारे खिलाफ भी दलील बन सकता है। वकुल्लुन नासि यग़दू फबाया नफ्सहु फमौतिकुहा औ मूबिकुहा, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर आदमी तिजारत कर रहा है। Everyone is businessman, हर आदमी व्यापार कर रहा है। किस चीज का व्यापार कर रहा है? अपने नफ्स का व्यापार कर रहा है। या तो अपने नफ्स का सौदा अल्लाह के साथ कर रहा है कि अय अल्लाह मेरा नफ्स तेरा है, अय अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के हवाले करता है तो जन्नती बन जाता है। या अपने नफ्स का सौदा शैतान के साथ कर लेता है, शैतान की मर्जी के मुताबिक चलने लगता है तो बर्बाद हो जाता है। तो हर आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई घाटे में कोई फायदे में। अल्लाह हमको फायदे वाला बना दे। तो पूरी हदीस में जो मैं मतलब साबित करना चाहता था कि तहारत और पाकी को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आधा ईमान करार दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी बड़ा पाक साफ है, कपड़ा भी बिल्कुल चमचमा रहा है, कहीं एक दाग नहीं है, लेकिन दिल गंदा है, दिल नापाक है, दिल में हसद है, जलन है, कीना है, कपट है, शिर्क है, रब की नाफरमानियां है। बताओ ऐसा आदमी पाक है कि नापाक है? वो जाहिरी एतबार से पाक है लेकिन हकीकत में वो नापाक है। चलिए एक हदीस सुना देता हूँ, एक बड़ा प्यारा वाक़या आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, अचानक आप अपने सहाबा से कहते हैं यत्लु अलैकुमुल आना रजुलुम मिन अहलिल जन्नह, ऐ मेरे सहाबा अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने एक जन्नती आदमी आने वाला है। सहाबे किराम की निगाहें दरवाजे पर लग जाती है। नबी ने अपनी जुबान से जन्नती बोल दिया। वो कौन सा खुश नसीब आदमी है जिसको नबी पाक ने अपनी जुबान से जन्नती कह दिया, जरा हम भी देखें। सहाबा ने दरवाजे की तरफ निगाह को डाला। थोड़ी देर में कंसारी साहबी दरवाजे से आते हैं, वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, अपने बाएं पैर में अपने दोनों जूते पकड़े हुए चले आ रहे हैं। साहबे किराम समझ जाते हैं कि ये जन्नती साहबी है, नबी पाक ने इनको जन्नती कह दिया लिहाजा ये जन्नती है। दूसरे दिन फिर वही बात क्या होता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा से कहते हैं मेरे साहबा अभी थोड़ी देर में एक जन्नती साहबी आएंगे, एक जन्नती इंसान आएंगे। साहबा फिर दरवाजे की तरफ निगाह डालते हैं, वही सहाबी वही अंसारी साहबी अपने हाथों में जूता पकड़े चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है।
3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। सहाबे किराम को तो जज्बा था जन्नती बनने का, हमें और आपको जज्बा है करोड़पति बनने का, हमें और आपको जज्बा है नेतागिरी करने का, हमें और आपको जज्बा है खिलाड़ी बनने का, हमें और आपको जज्बा है दुनिया के फिल्मी हीरो की नकल करने का। सहाबा के दिलों में जज्बा था जन्नती बनने का, उनके दिल में लगन थी जन्नत में जाने। एक सहाबी उठते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस उठते हैं, अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाते हैं कि जरा देखो ये कौन सा अमल करते हैं, ये कौन सा ऐसा खास काम करते हैं कि इनको अल्लाह के नबी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक लगातार जन्नती कहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस उनके घर जाते हैं, कहते हैं मेरे अंसारी भाई, मेरे बाप से झगड़ा हो गया है, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं 3 दिन तक अपने बाप के साथ नहीं रह सकता, क्या तुम मुझे अपने घर में 3 दिन तक अपने साथ रहने की इजाजत दोगे? जरा देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ उन सहाबी के साथ टाइम गुजारने के लिए एक तरकीब निकाली, एक तरीका अपनाया। उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था उनके बाप से। उनका मकसद ये था कि मैं देखूं कि ये आखिर कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि नबी पाक ने इनको जन्नती का। और उनको ये भी पता था कि मैं डायरेक्ट पूछूंगा तो ये बताएंगे नहीं। सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह नुमाइश करने वाले नहीं थे नेकियों की, हमारी और आपकी तरह अपनी इबादतों की शोहरत नहीं करवाते थे। सहाबे किराम मुखलिस और इखलास वाले लोग थे, वो अपनी नेकियों को छिपा छिपा के संभाल के रखा करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस 3 दिन तक उन सहाबी के साथ रहते हैं। लगातार 3 दिन तक साथ में रहने के बाद कहते हैं कि मैंने तो कोई स्पेशल बात नहीं देखी, ये तो रात में तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, रात में जब बिस्तर पे सो जाते हैं, रात में अगर नींद खुलती है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की आवाज उनकी जुबान से निकलती है। उसके अलावा ये रात में कोई नमाज भी नहीं पढ़ते, फजर नहीं उठते हैं। कोई खास बात मैंने उनके अंदर नहीं देखी। हाँ, एक खास बात जरूर देखी कि मैंने उनकी जुबान से कोई गलत जुमला नहीं सुना, किसी की ऐब जोई करते, किसी की बुराई करते हुए नहीं पाया। उनकी जुबान से जब भी निकली तो अच्छी बात निकली। जब 3 दिन गुजर गए, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, मेरे प्यारे भाई, ना तो मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ है, न मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला है। ये तो एक तरीका मैंने अपनाया था तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का। असल में मामला ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने लगातार 3 दिनों तक तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम एक जन्नती आदमी हो। मैं यही जानना चाहता था कि आखिर तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि अल्लाह के नबी ने तुमको जन्नती करार दिया है। वो अंसारी साहबी कहते हैं, ओ मेरे प्यारे भाई, मेरी जिंदगी तुमने देख ली है, मैं कोई स्पेशल अमल नहीं करता, मैं कोई ऐसा अमल नहीं करता जो तुम नहीं करते। हाँ, एक बात जरूर है, ला अजिदु फी क़ल्बी li अहदिन मिनल मुस्लिमीन ग़िश्शा, मैं अपने दिल के अंदर किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट का जज्बा नहीं रखता, मैं किसी के साथ धोखाधड़ी करने का जज्बा अपने दिल में नहीं रखता, मैं अपने किसी मुसलमान भाई के साथ फ्रॉड का जज्बा नहीं रखता। वला अहसुदु अहदन अला निअमतिन आताहुल्लाहु इय्याहा, और मैं किसी से हसद नहीं करता, मैं किसी की नेमत पर, किसी की दौलत पर, किसी की शोहरत पर जलता नहीं, मैं हसद भी नहीं करता, मेरा दिल हसद से भी पाक है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने कहा, हियल्लती बल्लगत बिका, ऐ मेरे अंसारी भाई, यही तेरी वो नेकी है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचाया, यही तेरी वो नेकी है कि नबी अकरम ने तुम्हारे बारे में 3 दिन तक कहा कि तुम एक जन्नती सहाबी हो, और इसकी ताकत हमारे अंदर नहीं। सहाबी कह रहे कि हमारे अंदर ये ताकत नहीं, तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारा दिल इतना साफ है। मेरे प्यारे भाइयों, कपड़े तो साफ है हमारे, कुर्ते तो साफ है हमारे, पायजामे तो साफ है हमारे, लेकिन दिलों में गंदगी भरी है। इन गंदगियों को निकाल फेंको, तब तुम पाक साफ लोगों में शुमार किए जाओगे, और तब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तुम्हें हासिल होगी। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जो कहा अल्लाह ने कि अल्लाह पाक लोगों से मोहब्बत करता है, जब तक हमारा दिल पाक नहीं होगा अल्लाह की मोहब्बत हमें नहीं मिलेगी। तो 3 चीजें हो गई। नंबर 4, चौथी चीज क्या है?
सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 उठाइए, ये वही आयत है जो मैंने खुतबे मसनूना में पढ़ी थी। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, नबी के पीछे पीछे चलो, नबी के नक्शे कदम पर चलो। फत्तबिऊनी, जब तुम नबी की इत्तिबा करने लगोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इस आयत से एक नुक्ता और मिला कि अल्लाह का वली जो होगा वो रसूल की इत्तिबा करने वाला होगा। रसूल की इत्तिबा के बगैर कोई हवाओं में उड़ता रहे, कोई पानी में चलता रहे, वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान की आयत बता रही है कि मेरे रसूल की इत्तिबा के बगैर कोई अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता, और जो अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता वो अल्लाह का वली कैसे बन सकता है। और एक बात बोली, चलो आज की पूरी तकरीर का खुलासा लेके चले जाओ। इत्तिबाए रसूल अगर है तो इबादत इबादत है, और इत्तिबाए रसूल अगर नहीं है तो इबादत भी हमारे हक में सजा है। दलील क्या है? बुखारी और मुस्लिम की हदीस अपने सामने रखी। नबी अकरम के 3 सहाबा आपकी बीवियों के पास आए, पूछा कि अल्लाह के रसूल की इबादत कितनी होती है, आप कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितना रोजा रखते हैं, कितना सदका खैरात करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात ने बताया, उन्हें कम महसूस हुई, उन्हें नबी की इबादत कम लगी। सहाबे किराम आपस में मशवरा करते हैं, कहते ऐना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां हम, कहां अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, अगर आप इतनी नेकी करते हैं तो आपका काम चल जाएगा, हमारा नहीं चलेगा। एक साहबी ने कसम खाई, आज के बाद मैं रात में कभी आराम नहीं करूंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। दूसरे साहबी ने कसम खाई, मैं आज के बाद कभी बेरोजा नहीं रहूंगा, हमेशा रोजा रहूंगा। तीसरे ने कसम खाई, मैं शादी ही नहीं करूंगा, न बीवी बच्चों का झंझट पालूंगा, न मेरी इबादत में खलल पड़ेगा। तीनों सहाबा ने कसम खा ली। ये बात अल्लाह के प्यारे नबी तक पहुंची। प्यारे नबी ने उन तीनों सहाबा को बुलवाया, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, ऐ मेरे सहाबा, क्या आप लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? क्या आपने कहा है कि मैं रात भर आराम नहीं करूंगा? क्या आपने कहा है कि मैं कभी बेरोजा न रहूंगा? क्या आपने कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा? तीनों सहाबा ने कह दिया, हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसा कहा है। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अपने दिमाग के दरवाजे खोल के मेरी इस बात को सुनो। प्यारे नबी ने कभी भी अपने सहाबा के सामने अपनी इबादत का ढिढोरा नहीं पीटा, कभी अपने तकवा का ढिढोरा नहीं पीटा। लेकिन जब यहाँ पर मौका आया कि सहाबे किराम ने तकवा का मतलब कुछ और समझ लिया, इबादत का मतलब कुछ और समझ लिया, तो प्यारे नबी ने वजाहत के साथ फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, कान खोल कर सुन लो, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा मेरे दिल में है। लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रात को आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी नहीं भी रखता हूँ, और मैंने निकाह भी किए, मेरी बीवियां भी मौजूद हैं। और ऐ मेरे सहाबा, कान खोल कर सुन लो, यही मेरा तरीका है। फमन रजीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरा तरीका छोड़ दोगे तो फिर मेरे दीन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मेरी शरीयत से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अभी मुहर्रम का महीना आया, हमने नबी के नवासे के गम के नाम पर भी बहुत सारी चीजें देखी। मेरे प्यारे भाइयों, क्या मेरे नबी ने हमें गम मनाने का तरीका नहीं बताया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे नबी ने इस्तिंजा करने का तरीका तो बताया, मेरे नबी ने मुसाफा करने का तरीका भी बताया, मेरे नबी ने मिलने जुलने के तरीका भी बताया, तो मेरे नबी ने गम मनाने का तरीका भी जरूर बताया होगा। हुसैन की शहादत का गम हमें भी है, हुसैन की दर्दनाक शहादत का गम हमें भी है, लेकिन हुसैन के नाना में गम मनाने का तरीका भी हमें बताया है। जरा उठाओ बुखारी की हदीस, नबी अकरम के
प्यारे बेटे का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी अपने बेटे को अपनी आगोश में लिए हुए, अपने हाथों में लिए हुए, बेटे की लाश को हाथों में लिए हुए, और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू रवाए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे, दारों कतारात रो रहे। साहबे किराम कहते हैं, अय अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं, अय अल्लाह के नबी आपकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादी। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं बाप नहीं हूँ? क्या मेरे दिल में, मेरे सीने में क्या एक बाप का दिल नहीं है? ऐ मेरे सहाबा, ये बाप का दिल है, ये बाप का दिल है जो आंसू बहा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से दी गई रहमत है। एक बाप के दिल में बेटे के लिए जो मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की वजह से ये आंसू बह रहे हैं। ऐ मेरे सहाबा, मेरा बेटा दुनिया से गया है, मेरा बेटा दुनिया से गया है, ये आंसू उसी के गम में बह रहे हैं। नबी अकरम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जरा गौर से सुनना, ओ हुसैन का गम मनाने के नाम पर अपनी मनमानी करने वाले मेरे प्यारे भाइयों, जरा हुसैन के नाना की तालीम भी देख लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा, इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, तेरे जाने का सदमा तो हमको भी है, तेरे जाने का गम हमको भी है। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने पर हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हमारा दिल गमगीन है, लेकिन अपनी जुबान से हम कोई ऐसा जुमला न कहेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये है गम मनाने का तरीका, कि हमारा बाप भी अगर मर जाए तो हम गम का इजहार किसी ऐसे तरीके से नहीं कर सकते जो अल्लाह को नाराज करे। मेरे प्यारे भाइयों, जाओ जरा कभी ठंडे दिलो दिमाग से अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो कि आज हमने उसी नबी के नवासे के गम के नाम पर आज हमने जो ये काम हम कर रहे हैं, क्या ये उस नबी की तालीम है? क्या उस नबी के नवासे की तालीम है? ये किसकी तालीम है? आखिर जरा कभी ठंडे दिमाग से इस पर गौर करना। इत्तिबाए रसूल, खुशी मनाना नबी के जैसा, गम मनाना नबी के जैसा, नमाज पढ़ना नबी के जैसा, ज़कात देना नबी के जैसा, रोजा रखना नबी के जैसा, हज करना नबी के जैसा, जिंदगी गुजारना नबी के जैसा, शादी ब्याह करना नबी के जैसा, पूरी जिंदगी। इत्तिबाए रसूल का मतलब ही है कि रसूल के पीछे पीछे चलना। इत्तिबाए रसूल नहीं है तो अल्लाह की मोहब्बत आपको मिल नहीं सकती। अल्लाह का महबूब बनना है तो इत्तिबाए रसूल को अपनाना पड़ेगा। नंबर 5, कुरान करीम सूरह आल इमरान, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फइन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सुनो, जो वादे का पक्का है और मुत्तकी है तो मुत्तकियों से अल्लाह मोहब्बत करता है, मुत्तकियों से, तकवा वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तकवा का मतलब क्या होता है? तकवा किसको बोलते हैं? बाइक चलाते हो, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगाता है। पता है हेलमेट क्यों लगाता है? हेलमेट इसलिए लगाता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो खोपड़ी सलामत रहे, इसीलिए तो हेलमेट लगाया जाता है। अच्छा, बारिश हो रही है, आपने रेनकोट पहन लिया। क्यों पहना? ताकि बारिश से आपके कपड़े भीग न जाए। किसी चीज के नुकसान से अपने आप को बचाना, दैट इज कॉल्ड तकवा। इसी का नाम तकवा है। अब शरीयत में बार बार कहा जा रहा है मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो यहां मुत्तकी का क्या मतलब है? यहां मुत्तकी का मतलब यह है कि हर उस चीज से अपने आप को बचाया जाए, अपने आप को दूर रखा जाए जो अल्लाह को नाराज करे। कितना नादान है इंसान। डॉक्टर कहता है तुम्हें शुगर है, तुम मीठा नहीं खा सकते। डॉक्टर कहता है तुम्हें शुगर है, तुम मीठा नहीं खा सकते। आदमी मीठा नहीं खाता, रसगुल्ले का शौकीन है, गुलाब जामुन का शौकीन है, पूरी जिंदगी मीठा खाता चला रहा है। लेकिन डॉक्टर ने डरा दिया है, खाओगे मीठा तो मरोगे, नहीं खाता मीठा। चिकन का इतना शौकीन था कि हर तीसरे दिन चिकन पकवाता था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें शुगर, तुम्हें चिकन नहीं खाना, चिकन नहीं खाता। डॉक्टर के कहने पर हम चिकन छोड़ देते हैं, मीठी चीजें छोड़ देते। रब कहता है हराम चीजों से बचो। डॉक्टर की बात पर भरोसा, रब की बात पर भरोसा नहीं। डॉक्टर कहता है अगर मीठी चीज खाओगे तो मर जाओगे, मेरा रब कहता है मेरी नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, हम डॉक्टर की बात का एतमाद कर लेते हैं, रब की बात नहीं मानते।
तक़वे का मतलब यही है कि अपने आप को उन तमाम चीजों से दूर रखा जाए जिनसे अल्लाह नाराज होता है। और एक अजीब बात बताऊं आपको, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 में अल्लाह ने एक अजीब बात बयान फरमाई। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। क्या मतलब? अल्लाह का तक़वा वैसा अपनाओ जैसा हक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि इस आयत का क्या मतलब है? उन्होंने कहा इस आयत का मतलब ये है अन युताअ फला युसा व अन युज़करा फला युनसा व अन युज़करा फला युग़फर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की फर्मा बरदारी की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए, अल्लाह को हमेशा याद रखा जाए, उसको कभी भूला न जाए, अल्लाह का हमेशा शुक्रिया अदा किया जाए और उसकी कभी नाशुक्री न की जाए। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक ने सहाबी रसूल हजरत उबई ने काब से पूछा कि ऐ उबई, ये तक़वा क्या है? हजरत उबई ने कहा, काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी आप किसी कांटेदार रास्ते से गुजरे जहां दोनों तरफ कांटेदार दरख्त हो, झाड़ियां, किसी ऐसे रास्ते से गुजरे? कहा कि हाँ गुजरा हूं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ऐसे रास्ते में अगर आपको जाना हो तो कैसे जाएंगे? हजरत उमर ने कहा, शम्मिरु अन सियाबी व अस्तरी, मैं अपना कपड़ा समेट लूंगा और किसी किसी तरीके से अपने आप को कांटों से बचा के रास्ता पार करूंगा। हजरत उबई ने कहा, ज़ाक़त तक़वा, इसी का नाम तक़वा है, इसी का नाम तक़वा है कि कदम कदम पर फितने हैं, कदम कदम पर शैतान के जाल हैं, कदम कदम पर गुनाह के बाजार है, कदम कदम पर बेहयाई के तूफान है, कदम कदम पर फहाशी है, कदम कदम पर उरियानियत है, कदम कदम पर ईमान दिख रहा है, कदम कदम पर इस्लाम को बर्बाद किया जा रहा है, कदम कदम पर दीन को तोड़ा जा रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे मुआशरे में अपने ईमान को बचा के रखा जाए। ये क्या है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मामला है, क्या है भाई? तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम हमारे दीन का फैसला करो? ठीक है, तलाक के मसले पर मुसलमानों के बीच में इख्तिलाफ है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। गवर्नमेंट को क्या हक पहुंचता है कि वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल दे? मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वफादार है, लेकिन मुसलमान इस्लाम का पैरोकार है। अपने दीन के मामले में मुसलमान कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। और सुन लीजिए, मैं एक अहले हदीस भी हूं और 3 तलाक के मसले में हमारा मसलको मौक़िफ़ कुछ और है, हमें पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ भी है। लेकिन आज मैं अलल ऐलान ये बात कहता हूं कि हुकूमत की इस पॉलिसी के हम खिलाफ हैं। हमारा जो भी इख्तिलाफ है, हम इस इख्तिलाफ को, हम हुकूमत को इस इख्तिलाफ का फायदा उठाने नहीं देंगे। हमारे जो इख्तिलाफात है वो हम आपस में समझ लेंगे, लेकिन हम हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं देंगे कि वो तलाक के मैटर पर, वो खुला के मैटर पर, वो हलाला के मैटर पर, वो शरीयत के किसी मैटर पर भी वो मुसलमानों के किसी मामले में दखल दे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये सब क्या है? ये आज हमारे दीन के साथ खेलने की साजिशें चल रही है। मेरे भाइयों, तक़वे का इम्तिहान यही है कि ऐसे फितनों के माहौल में अपने दीन को बचाया जाए, अपने ईमान को बचा के रखा जाए। हजरत उबई इब्न काब ने तक़वे का यही मतलब बताया है। नंबर 6, सूरह आले इमरान की आयत है, आइए देखते हैं। वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़ाक़ू वमस्तकानू। अल्लाह फरमाता है कि प्यारे नबी के पहले दुनिया में जितने नबी आए, उन नबियों के साथ साथ अल्लाह वाले भी अल्लाह की राह में लड़ा करते थे। और अल्लाह की राह में जब भी मुसीबत आई, अल्लाह वाले कभी कमजोर नहीं पड़े, कभी उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ, कभी उन्होंने बातिल के आगे हथियार नहीं डाला। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ऐसे ही सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। अभी आपने मौलाना आतिकुर रहमान साहब की तकरीर में भी सब्र के बारे में सुना। हम लोग समझते हैं सब्र का एक ही मतलब है, मुसीबत आए तो सब्र कर लो, तकलीफ आए तो सब्र करना। नहीं, सब्र का मतलब इतना छोटा नहीं है। सब्र का मतलब यही है कि जाड़े की सर्द रातों में जब फजर की अज़ान हो और मुअज्जिन आवाज से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है,
आप अपना बिस्तर छोड़कर, अपना कंबल छोड़कर, सब कुछ आराम को छोड़कर ठंडे ठंडे पानी से वजू बनाकर फजर की नमाज पढ़ने आए, इसका भी नाम सब्र है। सब्र इसका भी नाम है कि एक नौजवान जब मार्केट में जाता है, खूबसूरत लड़कियां नीमुरिया लिबासों में नजर आती हैं, उनके जिस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जो छिपाने के लायक हो, उसको छिपाया गया हो। उरियानियत की तमाम हदों को पार किया जा रहा है, लेकिन एक मुसलमान नौजवान अपने नबी के इरशाद को, अपने रब के कुरान के इरशाद को अपने दिल के सामने रखता है, नजर के सामने रखता है। उसे पता है कि उसके रब ने कुरान में कहा है कि ऐ मोमिनो अपनी निगाहों को नीची रखो। वो रास्ते से गुजर जाते अपनी निगाहों की हिफाजत करता है। ये भी सब्र है। सब्र वो भी है जो बिलाल हबशी ने अरब की तपती हुई रेत पर दिखा दिया था। अरब की तपती हुई रेत पर बिलाल को लेटा दिया जाता है, बिलाल के सीने पर गरम पत्थर रख दिया जाता है और बिलाल से कहा जाता है, बिलाल एक बार तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन का इनकार कर दो। ऐ बिलाल एक बार तुम ये कह दो कि मक्का के 360 दुख हमारे मुश्किल कुटाए, ऐ बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिलाल की चर्बी पिघल रही है, बिलाल सीने पर पत्थर का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। बिलाल अरब की हुई रेत पर लेते हैं, लेकिन बिलाल की जुबान से तब भी एक ही जुमला निकलता है, अहद अहद अहद, नहीं नहीं मेरा परवरदिगार तो एक है, मेरा अल्लाह तो एक है, मेरा मुश्किल कुशा तो एक है। बिलाल ने भी सब्र का मतलब हमें समझाया है। सब्र का मतलब अगर समझना है तो सुमैया से जाकर समझ लो। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके शौहर के सामने, उनके बेटे के सामने नंगा करके बड़ी ही बेदर्दी से अबू जहल ने शहीद कर दिया। हजरत सुमैया ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। सुमैया ने ईमान का सौदा नहीं किया, जान कुर्बान कर दी। सुमैया ने दिखा दिया कि सब्र किसको कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब्र बड़ी भारी चीज है, ये सब्र बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के दीन पर जमे रहने का नाम सब्र है। गुनाहों से अपने आप को बचाने का नाम सब्र है। नेकी के कामों को करते रहने का नाम सब्र है। हालात कुछ भी आ जाए, मुश्किलें कुछ भी आ जाए, लेकिन दीन और ईमान को बचाने का नाम सब्र है। इसीलिए सब्र का कोई बदला नहीं बताया गया। सब्र का बदला अल्लाह जानता है। अल्लाह ने फरमाया वस्साबिरूना, कैसे आए थे, पूरे ज़ुमर की आयत है, युवफ़्फ़ा अजरहुम बिग़ैर हिसाब, के सब्र करने वालों को उनका अज्र जो है बगैर हिसाब के दिया जाएगा। और सब्र का क्या बदला है हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नंबर 7, 6 चीजें होगी, 16 चीजें बयान करनी है, टाइम भी कम है। नंबर 7, 7वीं चीज तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ मेरे प्यारे नबी आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से आप बड़े नरम दिल हैं। अल्लाह के नबी बड़े नरम दिल थे, बड़े नरम दिल थे, इतने नरम दिल थे कि नबी अकरम के सामने मस्जिद में आके पेशाब कर देता है देहाती, नबी अकरम कोई गुस्से का इजहार नहीं करते। साहबा से कहते पानी डाल दो, देहाती को बुला के प्यार से समझा देते हैं मस्जिद है, इबादत की जगह, यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। आज हमारे जमाने में कोई गैर मुस्लिम आके मस्जिद में पेशाब करते दंगा हो जाए। अभी बिहार में छपरा के अंदर कुछ दिनों पहले एक दंगा हुआ था। मुझे बाद में कुछ मेरे भाई, कुछ वहाँ छपरा में मेरे कुछ दोस्त रहते, उन्होंने बताया कि दंगा सिर्फ इतनी सी बात पर भड़का था कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कोई त्योहार था, उनकी जो मूर्ति वगैरह उठती है वो मुसलमानों के इलाके से गुजर रही थी, उन्होंने अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मेरे भाइयों, थोड़ी सी अपने अंदर सहनशीलता और सब्र और तहम्मुल का जज्बा भी पैदा कीजिए। नबी अकरम ने ये तालीम भी हमें दी है। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहाँ दुनिया भर के मजहब के मानने वाले रहते हैं। आज अल्लाह का फजलो करम है कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान अपने दीन के मामले में कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। वो जब चाहे प्रोग्राम कर सकता है, वो जब चाहे अपना दीनी जलसा कर सकता है। नमाज की पूरी आजादी है, रोजे की पूरी आजादी है, ज़कात और हज की पूरी आजादी। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे मुल्क में हमारे दीन के सिलसिले में हमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं। तो हमारे नबी ने हमें नरम दिली का सबक दिया है। जहाँ ईमान और अकीदे का मामला आया हम कंप्रोमाइज न करें, लेकिन जहाँ नरमी का मामला आए हमें नरमी करनी चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे नबी, अल्लाह का करम है कि आप बड़े नरम दिल हैं। वलो कुंता फज़्ज़न, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप बदमिजाज होते, गलीज़ल क़ल्ब, अगर आपका दिल सख्त होता, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ऐ मेरे नबी ये सहाबा आपको छोड़ के चले गए,
یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار ہے، آپ اتنے نرم دل ہیں، آپ کے مزاج میں اتنی محبت ہے کہ صحابہ پروانے کی طرح چمٹے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاعفو عنہم، اگر آپ کے صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرو، وشاورہم فی الامر، اور اے میرے نبی ان سے مشورہ بھی کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے مشورہ کیا کرو۔ آج مسجد کا متولی کوئی بن جاتا ہے، میں متولی ہوں، میں کسی سے کیوں مشورہ کروں، میں مدرسے کا صدر ہوں، میں جو چاہے سو کروں۔ آج عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، آدمی کا ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، آدمی کا دماغ آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مشورے میں برکت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب صحابہ سے مشورہ کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی فیصلے پر آپ لوگ متفق ہو جائیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے میرے نبی اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، ڈاکٹر کے یہاں نہ جا کے اللہ پر بھروسہ کر لوں اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں جاؤں، علاج کراؤں، لیکن ڈاکٹر کی علاج سے زیادہ اللہ کی شفا پر بھروسہ رکھوں، یہ ہے توکل۔ دنیا کے اسباب کو اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اسباب بھی وہی اپنانا ہے جو جائز ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، علاج کراؤ۔ اگر لگ رہا ہے کہ نظر لگ گئی، اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، نظر بد کی دعائیں پڑھ کے دم کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیر میں تعویذ باندھ دیا، گلے میں تعویذ باندھ دیا، یہاں پہ کچھ باندھ دیا، وہاں پہ کچھ باندھ دیا، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جب تک ہم نے یہ باندھ دیا اب میرے بچے کو نظر نہیں لگ سکتی، اب میرے بچے کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ نبی نے سکھایا کیا؟ نہیں، نبی اپنے نواسے حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے پیارے نواسوں، میں تمہیں وہی دعا پڑھ کے دم کرتا ہوں جو تمہارے باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا تو کوئی یاد نہیں کرتا، وہ دھاگا ضرور پہنا دیتا ہے اپنے بچے کو۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ جائز جو طریقہ ہے علاج کا، دوا کا، اس کو اپنا کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ دکان کھول کر جائز چیز کا کاروبار کیا جائے، لیکن روزی دینے کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، یہ ہے توکل اور یہ ہے بھروسہ۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اے لوگوں، اگر تم واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو اللہ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے۔ پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، اور جب شام کو واپس جاتا ہے تو پیٹ بھر کے جاتا ہے۔ پرندے سے سیکھو، وہ کبھی خالی پیٹ واپس نہیں جاتا، پیٹ بھر کے جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے، اور پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، نکلتا ہے۔ کاروبار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن روزی روٹی کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اس کا نام ہے توکل اور بھروسہ، اور توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 8، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 28ویں پارے میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اے مسلمانوں، جو غیر مسلم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، جو کفار تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، اللہ تم کو منع نہیں کرتا، تم ان کے ساتھ بھلائی بھی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف کرو، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی انیائی نہیں ہونا چاہیے، انصاف کرو۔ نبی اکرم کے زمانے میں ایک عورت چوری کرتی ہے، بڑے اونچے خاندان کی عورت،
उसके खानदान वाले कहते हैं हमारे कबीले की औरत का हाथ काटा जाएगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो हजरत ओसामा को अल्लाह के नबी के पास भेजते हैं। हजरत ओसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी, बड़े ऊंचे खानदान की लड़की है, अगर हाथ काटा जाएगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, अरे अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दी जाए। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आप फरमाते हैं अतज़फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, अय ओसामा क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात कर रहे हो? अय ओसामा ऐसा नहीं हो सकता। अय ओसामा कान खोल कर सुन लो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखज़ूम की औरत फातिमा थी, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा, अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये इंसाफ है। तो इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। नंबर 9, अल्लाह ऐसे लोगों से भी मोहब्बत करता है जो मोमिनों के लिए नरम है और काफिरों के लिए सख्त है। दलील सूरह माइदा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अपने दीन को छोड़ दोगे, मुर्तद हो जाओगे, अपने दीन को छोड़कर फिर जाओगे, तो ऐ ईमान वालो कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। ये कौन लोग होंगे? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, ये मोमिनों के लिए नरम होंगे, इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, और काफिरों के लिए सख्त होंगे। क्या मतलब काफिरों के लिए सख्त होने का? गैर मुस्लिमों के साथ मारपीट की जाए, हथियार चलाया जाए, उनके लिए खूंखार बन जाए? नहीं, अकीदे और ईमान के मामले में टाइट होते हैं, सख्त होते हैं। अकीदे और दीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये है ईमान वालों का पहचान। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और ऐसे लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, ला यखाफून लौमत लाइम, ये हक बात बोलते हैं, ये परवाह नहीं करते कि किसको बुरा लग रहा है, ये परवाह नहीं करते कि कल कौन क्या कहेगा, ये हक बात बरसरे मिंबर बयान कर देते हैं, अलल ऐलान बयान कर देते हैं। नंबर 10, अल्लाह उन लोगों से भी मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, अल्लाह की राह में लड़ाई करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों से जंग करते हैं। कुरान का 28वां पारा देखिए, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में सफ लगाकर लाइन से खड़े होकर अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, जंग करते हैं। यानी अगर जिहाद की सैफ का मौका आ जाए, अगर मैदान जंग का मौका आ जाए, तो ईमान वाला सोचता नहीं और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह से भी अल्लाह मोहब्बत करता है। नंबर 11, नरमी करने वाले से भी अल्लाह मोहब्बत करता है। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी अकरम के पास कुछ यहूदी आए, थोड़ी सी बातें रह गई हैं, आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, मैं इंशाअल्लाह 5-10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नंबर 11, बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा कहती है कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने आकर अल्लाह के नबी को सलाम किया, और सलाम कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम। अरबी में सलाम का मतलब सलामती, और उसमें से लाम को निकाल दो, अस्सलाम वालेकुम का मतलब तुम्हारे ऊपर मौत, तो मर जाओ। तो यहूदियों ने नबी अकरम को सलाम करने के बजाय मौत की बद्दुआ दी, कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे ऊपर मौत हो। अम्मा आयशा ने सुन लिया। अम्मा आयशा के सामने उनके सरताज की कोई तौहीन करे, वो कैसे गवारा कर सकती थी? उन्होंने फौरन जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की फटकार हो, तुम मर जाओ, तुम्हें मौत आ जाए, तुम मेरे हबीब को गाली दे रहे हो। हजरत आयशा की अल्फाज अल्लाह के नबी के कानों तक पहुंच गए। आपने फरमाया, ऐ आयशा,
इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्रि कुल्ली। ऐ आयशा, अल्लाह ताला नरमी वाला है और नरमी को पसंद करता है। ऐ आयशा, इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। ऐ आयशा, तुम्हें इतना सख्त जुमला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा कहती है, आए अल्लाह के नबी, क्या आपने नहीं सुना उन लोगों ने आपको क्या कहा? उन्होंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने आपके ऊपर मौत की दुआ की है। आपने फरमाया, आए आयशा, मैंने भी जवाब दे दिया है। आए आयशा, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा था, मैंने जवाब में वालेकुम कह दिया। उन्होंने जो मुझको कहा, मैंने कहा वालेकुम तुम्हारे ऊपर भी हो। मैंने जवाब दे दिया आयशा, अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तो नरमी को अल्लाह पसंद करता है। नंबर 12, खूबसूरती को अल्लाह पसंद करता है। खूबसूरती को, हदीस पाक देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जन्नत में वो आदमी नहीं जा सकता जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर और घमंड हो। एक सहाबी खड़े हो गए, आए अल्लाह के नबी, तो बड़ी खतरनाक बात है। आए अल्लाह के नबी, हम में से कोई आदमी अगर कपड़ा अच्छा पहने, जूता अच्छा पहने, उसके पास से एक गरीब आदमी गुजरता है तो एक ऑटोमेटिक एक फीलिंग होती है, एक जज्बा पैदा होता है कि मेरा कपड़ा अच्छा है, उसका कपड़ा गंदा है, मेरा जूता अच्छा है, उसका जूता गंदा है। आए अल्लाह के नबी, आप फरमा रहे हैं कि जर्रा बराबर भी दिल के अंदर अगर घमंड हो तो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। आए अल्लाह के नबी, क्या अच्छा कपड़ा पहनना बंद कर दें, क्या अच्छा जूता पहनना बंद कर दें? आपने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। क्या मतलब? यानी कोई काला कलूटा आदमी है तो बेचारा वो मायूस हो जाएगा कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, अल्लाह तो खाली खूबसूरत लोगों से मोहब्बत करता है। ये मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि आदमी अपने लिबास को अच्छा बना के रखे, अपनी शक्ल को अच्छा बना के रखे, अपना हुलिया अच्छा बना के रखे, अपने आप को वो जैसा भी है, काला है, गोरा है, सांवला है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, जैसा भी है, अपना हुलिया अच्छा बना के रखे। अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, खूबसूरती से अल्लाह मोहब्बत करता है। सब तकब्बुर किसको बोलते हैं, घमंड किसको बोलते हैं? नबी अकरम ने समझाया। देखो घमंड किसको बोलते हैं? अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास। घमंड का मतलब यह है कि हक बात पर इतराया जाए। हक बात है, हमको पता है कि सामने वाला हक बोल रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम कैसे मानेंगे? हमको पता है कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन हम 5 मानेंगे क्योंकि हमारे अब्बा 5 कहते थे। इसका नाम है तकब्बुर। अबू जहल को पता था कि रसूल अकरम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मगर एक जहालत उसके दिल में थी, एक तासुब था, नहीं मानता था, आपके लिए गड्ढा खोदता था, आपको परेशान करता था। अबू लहब आपका चचा था, उसे पता था कि अल्लाह के रसूल सच्चे रसूल है, लेकिन नहीं मानता। हक बात को न माना जाए, जानबूझकर न माना जाए, दैट इज कॉल्ड तकब्बुर। इसका नाम घमंड है, इसका नाम तकब्बुर है। और लोगों को हकीर जाना जाए। मेरा कपड़ा अच्छा है, आपका कपड़ा थोड़ा कमजोर है, लेकिन मैं आपको हकीर समझूं कि आप गरीब आदमी, मैं अमीर हूं, मैं ऊंचा हूं, आप नीचे हैं। आजकल हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, मैं सैयद हूं, तुम तो कुरैशी हो, तुम क्या हो, तुम तो नाई हो, मंसूरी हो, क्या बात करो मुझसे। मैंने देहातों में देखा, यूपी के कुछ इलाकों में, बस्ती वगैरह की तरफ, कि अपने आप को ऊंची बिरादरी का कहने वाला आदमी मुसलमान दूसरी नीची समझे जाने वाली बिरादरी के आदमी को अपनी चारपाई पर बैठने नहीं देता। बोले उतर, मेरी चारपाई पर बैठा है। जरा सोचो मेरे भाइयों की, क्या इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश है? ये सरासर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का जो कल्चर था वो हमारे यहाँ आ गया, कि उनके यहाँ अपर कास्ट लोअर कास्ट की, हमारे यहाँ बिरादरियां आ गई। मुझे बताओ कि मेरे नबी के सहाबा में
बिलाल हबशी भी मौजूद हैं, मेरे नबी के सहाबा में सुहैब रूमी भी मौजूद है, मेरे नबी के सहाबा में सलमान फारसी भी मौजूद है। मगर मुझे बताओ कि क्या कभी उमर फारूक ने अपने आप को उनसे ऊंचा समझा? क्या अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने आप को उनसे ऊंचा समझा? सब भाई भाई हैं, सब बराबर हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो, एक माँ बाप की औलाद हो, अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है। अल्लाह के ऊंचा अगर कोई है, इसका अमल ऊंचा है, इसका तकवा ऊंचा है। अपना अमल बेहतर बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं हम सैयद हैं, हमें तो जहन्नम में नहीं जा सकते, हमारे ऊपर जहन्नम की आग का असर नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब जाता है। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा नहीं पाते। बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहाँ नसब और बिरादरी नहीं देखी जाती, तो तकब्बुर इसका नाम भी है कि किसी को फकीर समझा जाए। नंबर 13, अल्लाह तबारक व तआला को शर्म और हया भी बहुत पसंद है। अबू दाऊद की हदीस है, नबी अकरम ने एक आदमी को देखा, वो खुले में नहा रहा है, कपड़ा उतार के बिल्कुल नेकेड होके नहा रहा है, लुंगी भी नहीं पहने, लुंगी उतार के नहा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे चढ़े, खुतबा दिया, और खुतबे के बाद आपने फरमाया कि ऐ सहाबा सुनो, इन्नल्लाह हय्युन सित्तीरुन, अल्लाह तबारक व तआला हया वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हया वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला पर्दा वाला है। क्या मतलब? हया वाला है, पर्दा वाला है। अल्लाह की एक सिफत हया भी है। अच्छा, इंसान को हया और शर्म जब आती है, कब आती है? एक औरत को हया आती है, क्यों? किसी के सामने नंगी नहीं होती। एक शर्मीली औरत किसी के सामने कपड़ा नहीं उतारती, किसी के सामने बेपर्दा नहीं होती, उसके अंदर हया है। एक मर्द किसी के सामने खड़ा होकर पेशाब नहीं करता, उसके अंदर हया है। अब बेहया आदमी कहीं भी पैंट की जिप खोलता है, कुत्ते की तरह खड़ा होकर पेशाब करना शुरू करता है कि नहीं करता है? तो हया इंसान की एक सिफत है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह ताला भी हया वाला है। अब अल्लाह की हया कैसी है अल्लाह जानता है। अल्लाह हया वाला है, अल्लाह की सिफत हया वैसी है जैसे उसकी शान के लायक है। और अल्लाह पर्दा वाला है। क्या मतलब? अल्लाह पर्दे में, हम अल्लाह को देख नहीं सकते दुनिया की आंख से। ये अल्लाह पर्दा डालने वाला है, अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह हया वाला है, अल्लाह पर्दा वाला है। युहिब्बुल हया वस्सित्रा, अल्लाह हया को पसंद करता है, अल्लाह पर्दे को पसंद करता है। फैज़ा इग़तसल अहदुकुम फल्यस्ततिर, लिहाजा जब तुम में से कोई आदमी गुस्ल करे तो पर्दे में करे। मैं कभी कभी देहात में तकरीर करने जाता हूँ, उधर बिहार वगैरह में, तो अब वहां नहाने के लिए चापाकल लगा हुआ है, मौलवी साहब यहीं पे नहा लीजिए। अरे अल्लाह के बंदे, मुझे ऐसे नहाने की आदत नहीं है। अरे मौलवी साहब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोई बाथरूम नहीं है, अब वहां वैसे ही नहाना है। अच्छा, एक तो नहा रहे हैं, ऊपर से वहां पर एक लड़का खड़ा रहेगा, ओ मौलवी साहब मैं थोड़ा बाल्टी भर दूं। अबे जा यहाँ से तू। यानी एक प्राइवेसी होती है, एक आदत है आदमी की। हम लोग शहर में रहते हैं कि एक अलग से सेपरेट बाथरूम, उसमें नहाते हैं। अच्छा, कहीं कहीं देहातों में शौचालय भी नहीं है, सवेरे लोटा लो निकल जाओ मैदान में, तो वो तो सबसे नहीं होता। जिसकी हैबिट है, आदत है, वो करेगा, शहर का रहने वाला कैसे करेगा? तो ये सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेशर्म लोगों को पसंद नहीं करता, जो कहीं भी खड़े होके अपना सतर खोलने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस हदीस में हमारी माँ बहनों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। औरत का तो जेवर है हया, औरत के अंदर से हया निकल जाए, वो देखने में तो औरत है लेकिन हकीकत में औरत है, उसका जेवर है हया। आज दुनिया ने औरत को कैसा बेहया बना दिया। आज सर पे लगाने वाला शैम्पू तो छोड़ो, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम तो छोड़ो, रिक्शे का टायर भी अगर मार्केट में बिकता है तो जब तक कोई औरत नंगी होकर उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करती, उसका प्रचार नहीं करती, तब तक एक टायर भी नहीं बिकता है। ये हालात है। और कहते हैं हमने औरत को आजादी दी है। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मैटर है, इसमें भी इनको मुसलमान औरतों की बड़ी, उनके हुकूक की, उनके अधिकारों की बड़ी फिक्र है। तुम रहने दो, अल्लाह के बंदे रहने दो,
मुसलमान औरतों के अधिकार की हिफाजत करने के लिए हम मुसलमान काफी हैं। तुम्हें हमारी औरतों के हुकूक की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहले अपने घर की जाके खबर लो, अपने घर की जाके खबर लो। मुसलमान औरतों के हुकूक की हिफाजत करने के लिए इस्लाम की शरीयत काफी है। तो ये 13वीं चीज थी जो मैंने आपके सामने बयान की। नंबर 14, अल्लाह तबारक व तआला को माफी भी बहुत पसंद है। हदीस में आता है इन्नल्लाह अफ़ुव्वुन युहिब्बुल अफ़्व, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है। हम लोग शब कदर में एक दुआ पढ़ते हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई है, याद है कि नहीं सबको? बच्चे बच्चे को दुआ याद होनी चाहिए। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तो माफ करने वाला है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह मुझे भी माफ कर। तो बच्चे से कोई गलती हो जाए, बीवी खाने में मसाला ज्यादा डाल दे, बच्चा कोई शरारत कर दे, बेटी कोई गलत काम कर दे, दरगुजर कर दो, समझा बुझा के माफ कर दो, हाथ उठा देना, सजा दे देना, ये अल्लाह के नजदीक अल्लाह माफ कर देने को ज्यादा बेहतर पसंद करता है। तो ये 14वीं चीज थी जो मैंने आपके सामने बयान की। नंबर 15, अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है, दौलत वाले हैं आप तो कपड़ा थोड़ा ढंग का पहनिए। अल्लाह ने आपको आलिम बनाया है, अपने इल्म का कुछ ख्याल रखिए। अल्लाह ने आपको गांव का मुखिया बनाया है, थोड़ा इस नेमत का इजहार कीजिए। अल्लाह अगर बंदे को कोई नेमत देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको भी चाहता है कि बंदे की वो नेमत इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह अपने बंदे के ऊपर नेमत का असर देखना चाहता है। यानी अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो जायज तरीके से आप अपनी दौलत का इजहार कर सकते हैं, किसी को हकीर दिखाने के लिए नहीं या रियाकारी के लिए नहीं। अगर आपको अल्लाह ने 500 रुपये के लायक कपड़ा पहनने के लायक बनाया तो आप 500 का कपड़ा पहन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 100 रुपये वाला खद्दी का कपड़ा पहन के घूमे और सबको दिखाएं कि हाँ मैं बहुत गरीब हूँ। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, नेमत दी है, तो वो नेमत जाहिर भी करना चाहिए, अल्लाह पसंद करता है। और आखिरी चीज नंबर 16, अल्लाह तबारक व तआला छींक जानते, छींक से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह, छींक से मोहब्बत करता है। चलो हदीस पढ़ के सुना देता हूँ, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह युहिब्बुल इताफा व यकरहु तताउबा, अल्लाह तबारक व तआला छींक को पसंद करता है और जमाही को नापसंद करता है। जमाही जानते हैं? हाँ, जो हम लोग पूरा मुंह खोल के जमाही लेते हैं, जमाही अल्लाह ताला को नापसंद है और छींक अल्लाह को पसंद है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने तिब्ब नबी में मौलाना बड़ी प्यारी बात लिखी है, बोले छींक कब आती है आदमी? जब आदमी एक्टिव होता है। जब छींक आती है, एक तो जुकाम वाली छींक होती है, और किसी को जुकाम हो जाए तो बार बार छींकता रहता है, वो वाली छींक नहीं। नॉर्मल छींक आए तो इसका मतलब कि आदमी सेहतमंद है, आदमी एक्टिव है। तो छींक इंसान के एक्टिव होने की अलामत है। और जमाई कब आती है? नींद आ रही है, सुस्ती है आदमी के अंदर, आदमी टायर्ड है, थका हुआ है, थकावट और थके होने की निशानी है। गोया अल्लाह तबारक व तआला एक्टिव लोगों को पसंद करता है और निठल्ले लोगों को पसंद नहीं करता। जो थक के बैठ जाते हैं, जो सुस्त पड़ जाते हैं, उनको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो अल्लाह छींक को पसंद करता है और अल्लाह जमाही को नापसंद करता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फैज़ा अतीसा, अगर किसी को छींक आए तो हमीदल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और सुनने वाला क्या कहे? यरहमुकल्लाह। सुनने वाले के लिए जरूरी है कि वो यरहमुकल्लाह कहे। और जमाही अगर आए तो अल्लाह के नबी फरमा रहे इन्नमा तसाउरु मिनश शैतान, जमाही शैतान की तरफ से आती है, जमाही शैतान की तरफ से आती है। फैज़ा तसाबा अहदुकुम, अगर जमाही आए तो अपने मुंह पर हाथ रख के उसको रोको। कुछ लोग तो रोकते नहीं है, पूरे मोहल्ले को दिखा दे कितनी खतरनाक मुझको जमाई आए। तो जमाई आए तो उसको रोको, हाथ कर लो मुंह पर, मत दिखाओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब किसी को जमाई आती है और कहता है हाँ जब कहता है तो शैतान हंसता है। सही कमी हो शैतान को हंसी आती है, शैतान को मजा मिलता है। तो लिहाजा
जमाही अगर आए तो उसको रोकिए, छींक अगर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और अगर आपके सामने किसी को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहिए। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में 16 चीजें थी, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बयान कर दी क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और आप हजरात के ऊपर भी अब थकावट का गलबा था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाही आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें अपना महबूब बनाए, रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की तौफीक से। हमारे मुल्क के जो हालात हैं मेरे भाइयों, इस वक्त हमें आपस में अपने जो शिराजा है इसको जो है बड़ा मजबूती से इसको मुत्तहिद करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह ताला हुकूमत की और इस्लाम के दुश्मनों की जो भी चालें हैं अल्लाह उनको नाकाम कर दे। अल्लाह हमें अपने ईमान और दीन की हिफाजत करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क के जो दुश्मन हैं अल्लाह ताला उन दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन इस मुल्क में हमारे जो बरादरान वतन हैं उनके साथ भी हमें भाईचारे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कुरान पर अमल करने वाला बना दे, रब्बुल आलमीन हमें हदीस पर अमल करने वाला बना दे, रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से, नबी के सहाबा से, नबी के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को जो नमाजी नहीं है बेनमाजी, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, जो अपने आप को दुनियावी फिल्मी हीरो की तरह अपनी शक्लें बनाए हैं, ऐ अल्लाह उनको इस्लामी शक्ल सूरत अपनाने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग कुरान से दूर हैं उन्हें कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को समझने वाला और कुरान पर अमल करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को इस्लामी पर्दा अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों के अंदर सिफत हया पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को खालिद इब्न वलीद जैसा बना दे। ऐ अल्लाह इन्हें हजरत हमजा जैसा बना दे। ऐ अल्लाह इन्हें हजरत अली जैसा बना दे। ऐ अल्लाह इन्हें हसन हुसैन जैसा बना दे। ऐ अल्लाह हमें अपने नबी की मोहब्बत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक जिंदा रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तौहीद हमारी तौहीद की हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद की दौलत पर हम सबको जिंदा रहने की तौफीक अता फरमा और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही कीमती और मैं आप लोगों के ख्याल से और मुख्तसर कर रहा था। हम लोग हाँ मैं अपने मूड में थे आपके। अच्छा।